Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to study about training and steps in training program. Now we'll understand few definitions of training. So the first definition is training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing a particular job. किसी भी जॉब को करने के लिए जो स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं. Another definition is training is a process by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are increased. तो ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड, स्किल्स और एबिलिटीज़ जो एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड स्पेसिफिक जॉब करने के लिए उनको हम इंक्रीज करते हैं. विल टेक एग्जाम्पल ऑफ बीपीओस. तो बीपीओस में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिनके बारे में आउटसाइडर्स को कोई नॉलेज नहीं होता है. तो उस प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट करने के लिए जिससे वो वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके उनको क्या देते हैं हम? ट्रेनिंग. Now we'll see steps in training program. So what are the steps? First step is discovering or identifying the training needs. तो पहले हम डिस्कवर करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ट्रेनिंग क्यों देनी है. So we will identify the training needs. Second step is designing the training program. अब हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली, अब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए. So we'll design that. Third step is developing the program. So after designing the program, we'll develop that program. Next step is implementing the training program. So after developing the program, we will implement that training program. And the last step is evaluating training effort. At last we will evaluate कि जो हमने training में efforts डाले हैं तो हमारे ट्रेनीज ने कितना गेन किया है. सो विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डिस्कवरिंग और आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स. A training program should be established only if it is felt that it would assist in the solution of specific operational problems. ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें तभी इस्टेब्लिश करना चाहिए जब लगता है किसी भी स्पेसिफिक जो हमारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, जो हमें ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें हेल्प करेगा, तभी हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम एस्टैब्लिश करना चाहिए. Identifying of training needs must contain 3 types of analysis: organizational analysis, operations analysis and man analysis. तो अगर हमें ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना है तो हमें 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस करने पड़ेंगे. दे आर ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, operations analysis and man analysis. So first one is organizational analysis. So organizational analysis centers primarily upon the determination of organizational goals, its resources and the allocation of the resources as they relate to the organizational goals. तो जब हम organization का analysis करेंगे so we'll focus on the determination of organizational goals. Will determine the organizational goals, its resources and allocation, and how will allocate, how will distribute the resources. So all these things will come under organizational analysis. Next one is operational analysis. So operational analysis focuses on the task or job. So in operational analysis we'll analyze the task or job. This analysis includes the determination of the workers must do, the specific worker behavior required if the job is to be performed effectively. तो इस एनालिसिस में क्या कि एम्प्लॉय का वर्क बिहेवियर कैसा होना चाहिए अगर हमें जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म करना है. मैन एनालिसिस. Man analysis reviews the knowledge, attitudes and skills of incumbent in each position and determines what knowledge, skills or attitude he must acquire and what alterations in his behavior he must make if he is to contribute satisfactorily to the attainment of organizational objectives.
तो हम मैन एनालिसिस में रिव्यू करेंगे नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ द इनकम्बेंट इन ईच पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यू करेंगे कि उसका नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल कैसा है। देन विल डिटरमाइन व्हाट नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड ही मस्ट एक्वायर। फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि एक्चुअल में उसका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एंड व्हाट alteration in his behavior he must make if he is to contribute satisfactorily to the attainment of organization's objective। और हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर में so that he can contribute satisfactorily to the attainment of organizational objectives। Second step is designing the training program। Design means preparing the overall training system including goals of training, methods of delivery and assessment of the program। So in designing, what we'll do? We'll prepare the overall training system and it includes goals of the training। हमारे ट्रेनिंग का गोल क्या है, methods of delivery, how we'll deliver that training program and assessment of the program, will assess, will check the results of the program। The process of designing the program is as follows। First step in the process is setting learning objectives। पहले हमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें उसे ट्रेनिंग क्या गेन करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग आ मोटिवेशनल लर्निंग एटमॉस्फेयर। तो हमें ट्रेनिंग्स के लिए एक मोटिवेटेड लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग द लर्निंग सब्सटेंशियल। में हमें ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए, ऐसे विजुअल एड्स यूज़ करने चाहिए जो ट्रेनिंग जिनसे फैमिलियर हो और जिनके थ्रू वो जो हमारा कंटेंट है वो इजीली लर्न कर ले। नेक्स्ट स्टेप इज मेक स्किल्स ट्रांसफर ऑब्वियस एंड इजी। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिससे जो हम ट्रेनिंग में ट्रेनिंग को सिखाएं वो उसको अपनी वर्किंग में इजीली ट्रांसफ़र कर ले। नेक्स्ट स्टेप इज रीइंफोर्स द लर्निंग। तो हम रीइंफोर्स कैसे कर सकते हैं लर्निंग को? बाय अप्रिशिएटिंग द ट्रेनी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। हम उसको अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको वेल डन कह सकते हैं, वेरी गुड कह सकते हैं। हम उसको अप्रिशिएट करके उसकी लर्निंग को रीइंफोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एंश्योर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू द जॉब। तो लास्ट स्टेप में हमें एंश्योर करना है कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा होना चाहिए जिससे जो ट्रेनी जो लर्न करे ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो वो इसको इजीली ट्रांसफर कर ले अपने वर्किंग में। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग द प्रोग्राम। तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम मीन्स डिजाइनिंग द ट्रेनिंग कंटेंट एंड मटेरियल्स ऑफ द प्रोग्राम। तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? विल डिज़ाइन द ट्रेनिंग कंटेंट। हमारा ट्रेनिंग कंटेंट क्या रहेगा, उसमें मटेरियल क्या रहेगा, मटेरियल ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सब हम डेवलप करेंगे। इट मीन्स सिलेक्टिंग द यूनिक एंड स्पेसिफिक कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय द प्रोग्राम एज वेल एज डेवलपिंग सिलेक्टिंग द रीडिंग केसेस, वेब बेस्ड एक्सेट्रा। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे जो स्पेसिफिक कंटेंट जो हमें प्रेजेंट करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे by developing and selecting the reading cases and web based etc. It must mention various training equipments that will be used such as workbooks, lectures, computer based activities, course activities and trainer manuals। तो उसमें हमें क्या मेंशन करना है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड हम कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि वर्कबुक है या हम लेक्चर्स लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज़, कोर्स एक्टिविटीज़, ट्रेनर मैनुअल्स, ये सब हम मेंशन करेंगे जो हम डेवलप करेंगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। द फोर्थ स्टेज इज टू इम्प्लीमेंट दिस कंटेंट टू द फोकस्ड ग्रुप। तो हमने जो कंटेंट डेवलप किया है अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक फोकस्ड ग्रुप पे जिनको हमें ट्रेन करना है। दिस स्टेप focuses on how the content will be delivered to the audience because there are various ways through which the training can be imparted to the trainees such as on the job training and off the job training। तो इस स्टेप में हम फोकस करते हैं कि जो हमने कंटेंट
डेवलप किया है हम वो डिलीवर कैसे करेंगे, बिकॉज देर आर वेरियस मेथड्स जिनके थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, सच एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. What are the methods of on the job training? Coaching or understudy method, job rotation, refresher training, orientation training, job instruction training, apprenticeship training, informal training, cross training, ice breaking sessions and vestibule training. तो ये क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं. तो इन मेथड्स के थ्रू हम ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं. एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, लेक्चर्स, इंसिडेंट मेथड, केस स्टडी एंड रोल प्लेइंग, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं. तो इन सभी मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे. द लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग एफर्ट. द फाइनल स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. फाइनल स्टेप क्या है कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे. There are many things the HR can measure, such as the emotional responses of the participants to the program, is discovered from the curriculum, and to what extent the curriculum changed their on-the-job behavior or outcomes. So there are many ways through which HR can measure the emotional responses of the participants. बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू HR देख सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे ट्रेनिंग के उनने क्या गेन किया है, उनने क्या डिस्कवर किया है जो क्यूरिकुलम था हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और टू व्हाट एक्सटेंट दैट क्यूरिकुलम चेंज देयर ऑन द जॉब बिहेवियर. हमने जो ट्रेनिंग दी है तो उनका ऑन द जॉब बिहेवियर कितना चेंज हुआ है, उनने कितना लर्न किया और उनकी वर्किंग में कितना इम्प्रूवमेंट आया है और उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या रहा, उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है. तो इन सब से हम इवेल्युएट कर सकते हैं हमारे ट्रेनिंग एफर्ट्स को. सो गाइस, आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, and if you find it helpful then please press the like button and subscribe my channel Learning Point. You can also leave a comment about the video and don't forget to follow us on Instagram. Thank you so much for watching. Stay safe. Bye bye.